Hello everyone and welcome to the class once again. In the last class we discussed that how Mahatma Gandhi was given a summon to appear before the court and how the spontaneous peasants from Champaran gathered outside the court to support Mahatma Gandhi and how the magistrate postponed the trial for some weeks. So at this point Mahatma Gandhi got a liberty because the trial was postponed for some days or some weeks. So let us continue the story from this point. Mahatma Gandhi called upon the lawyers of Bihar and Patna through his friend Rajendra Prasad. Rajendra Prasad का जरिए उसने lawyers को बुलाया. बुलाने के बाद he asked a question to them. What if I get arrested and what if I sent to the prison? At this point, one of the senior lawyer replied and said that we are here to help you. And if you go to the prison, if you are taken to the prison, then we don't have any other matter to deal with. So definitely we will return to Patna. At this point, Mahatma Gandhi again put up a second question on them. उनसे फिर पूछा that what will happen to the sharecroppers of Champaran? Who are going to take the responsibility? Who is going to give justice to the oppressive peasants of Champaran? So, जो lawyers था वो लोग थोड़ा struck हो गए और उन्होंने सोचा in a deep thought they thought उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी being an outsider doesn't mean that he doesn't belong to India, means he doesn't belong to the state बिहार का नहीं होके भी, पटना का नहीं होके भी, चंपारण का नहीं होके भी, वो गुजरात का है. वहां से आकर if he is ready to go to prison for the sake of peasants of Champaran, then why not us? हम यहाँ के हैं. We are the son of this soil. So why not us? हम क्यों नहीं कर सकते ये? उन्होंने रियलाइज किया और महात्मा गांधी से apology मांगा that we are sorry, we did a mistake. So again उन्होंने फिर जवाब दिया, आंसर दिया that if you go to prison, then we will follow you up there. हम भी आपके साथ prison चलेंगे. At this point, Mahatma Gandhi exclaimed that, lo and behold, the battle of Champaran is won. चंपारण का बैटल जीत लिया गया है. कैसे? महात्मा गांधी ने पहले किसका डर निकाला? पीजेंट्स का डर निकाला. अंदर में जो डर था उनका, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा नहीं करने का जो डर था, उसको अंदर से बाहर निकाला. वो कहां देखने को मिला? जब महात्मा गांधी को समन आया तो कोर्ट के बाहर में पूरा पीजेंट्स भर गए थे. मोतिहारी के, चंपारण के पीजेंट्स, मोतिहारी का कोर्ट का बाहर में सब पीजेंट्स लोग भर गए थे. इतना लार्ज क्राउड था वहां पे. तो इसमें पता चलता है कि वो उन लोगों ने अपने अंदर से जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो डर था, गवर्नमेंट ने जो उनके अंदर डर बना के रखा था, उनसे वो क्या हो गया? फ्री हो गया. उनसे वो आजाद हो गए. सो नाउ द लॉयर्स भी कहीं ना कहीं सरप्राइज होके थे गवर्नमेंट के रूल से, बीइंग एन गवर्नमेंट ऑफिशियल. लेकिन वो लोग भी उनका डर को बाहर निकाल के गांधी जी को फॉलो करने के लिए रेडी है. इट मीन्स गांधी वॉज कॉन्फिडेंट नाउ दैट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू विन दिस बैटल. दे आर गोइंग टू विन दिस बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स टायरनी. दैट इज वाई उसने कहा द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. So after several days, this magistrate sent an official notification to Gandhiji informing him that the Lieutenant Governor of India has asked to drop the case. केस को ड्रॉप करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कुछ दिनों के बाद. So at this point, Gandhi said that civil disobedience movement has triumphed for the first time in the history of India. Civil disobedience का movement का मतलब क्या है? Not to follow the government orders, not to follow the government rules. The British जो रूल्स था उसको फॉलो नहीं करना, उनका बात नहीं मानना, वो कहीं ना कहीं गांधी जी कहता है कि ट्रायम्फ हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम. कैसे? महात्मा गांधी ने डिसओबे किया था, उसको ऑर्डर दिया गया था that you should leave चंपारण forthwith, but he said, he wrote that I am disobeying this order. तो through non-violent, this civil disobedience movement has triumphed for the first time in the history of India according to Mahatma Gandhi.
सो आफ्टर डेट क्या हो गया, महात्मा गांधी along with his influential associates, that is the lawyers of Patna and Bihar, along with them, he started a probe investigation into the matters of the peasants of Champaran. इतना मतलब जो इंक्वायरी शुरू किया तो हर जगह चंपारण में पूरा कमोशन वॉज देयर, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, हर जगह इंक्वायरी चल रहा है, घर घर जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पूछताछ चल रहा है. एंड द लैंडलॉर्ड्स ऑन द अदर हैंड, वो तो चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि उनके खिलाफ ये मूवमेंट चल रहा है, तो वो लोग अगेंस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया है, लाइक दे वेर प्रोटेस्टिंग. लेकिन 10,000 डिपोजिशंस और 10,000 यू कैन से टेस्टिमोनियल्स वेर गैदर्ड, कलेक्टेड. महात्मा गांधी उसका टीम ने 10,000 जो कंप्लेंट लेटर्स थे पीजेंट्स के, उसको कलेक्ट किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया. सो एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंड, अगेन दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एडवर्ड गेट ने महात्मा गांधी को अगेन नोटिफिकेशन भेजा टू अपियर टू हिम, उनके पास आओ, उनसे मिलो बोलकर. तो महात्मा गांधी बिफोर लीविंग हिज एसोसिएट, उसका जो फ्रेंड्स था उसको छोड़ने से पहले उनसे ये कहकर गया कि अगर मैं वापस ना आऊं, अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने के बाद वापस ना आऊं, तो आप लोग ट्रूली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देना. इसलिए महात्मा गांधी ने उनको क्या किया, पेड़ पेड़ में डिवाइड किया, जोड़ा जोड़ा में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके कहा कि अगर मैं वापस ना आऊं और मुझे इलीगली अगर उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया तो आप लोग भी खुद को कोर्ट अरेस्ट करवा लो बोलकर और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दो. जस्ट लीड द फायर बोल के वो वहां से एडवाइस करके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए चला गया. सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडवर्ड गेट थे उस समय महात्मा गांधी से मिले और फॉर 4th प्रोटेक्टेड मीटिंग 4 घंटा 4 बार मीटिंग किया उनसे विदाउट ए पॉज, कंटिन्यूली मीटिंग करने के बाद महात्मा गांधी ने बताया दैट प्रॉब्लम ये है वो है, बहुत कुछ बताया. बताने के बाद में डिसीजन लिया, ए कमीशन और ए कमिटी वाज फॉर्म्ड, एक कमिटी बनाया गया. उस कमिटी में मेंबर्स कौन कौन थे, महात्मा गांधी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लैंडलॉर्ड्स, ये 3 जन थे उस कमिटी के अंदर में. महात्मा गांधी जो पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनका जो अपोजिट था द लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और थर्ड जो मेडिएटर का रोल कर रहे थे वो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ये तीनों को मिलकर एक कमिटी बनाया गया जो इस मैटर में डिटेल स्टडी करेंगे और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे. एग्जैक्टली चंपारण में सिचुएशन क्या है उसको ये लोग गैदर करेंगे. ये लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन लिया और उन लोगों को असाइन कर दिया, उन लोगों से कहा कि आप लोग ये ड्यूटी को करो और एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ ही आप लोग लौट कर आना. So the Champaran movement or the Champaran Satyagraha almost took 1 year of Mahatma Gandhi's life. For the illiterate or the unlettered peasant like Rajkumar Shukla, he thought that this would take only a few days or few weeks. लेकिन पूरा का पूरा अराउंड 1 साल महात्मा गांधी का लाइफ का इस मूवमेंट में चला गया, क्योंकि राजकुमार शुक्ला को मालूम नहीं है कि महात्मा गांधी का मेथड कैसा है, वर्किंग मेथड कैसा है उसका, What are his modus operandi and how does he work, उसको मालूम नहीं है. लेकिन आपको और हमें मालूम है कि महात्मा गांधी हर चीज को सिस्टमेटिकली लॉफुली वो करते थे विदाउट एनी वायलेंस, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह एज अ वेपन उसको यूज करके वो धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली काम को करते थे और वो अचीव भी करते थे उस चीज को. सो ए कमिटी वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन ऑफ चंपारण. और कमिटी को क्या मिला, what were the results of this inquiry, what were the results of this investigation? The landlords were found out to be guilty. They were found out to be guilty of illegally extorting the money from the peasants. Now they ought to return the money to them. But how much? कितना रिटर्न करेंगे? गांधी जी said, because he was a sole representative of the peasant के बिहाफ में वो खड़े थे, इसलिए उन्होंने कहा I am not asking for 100% refund, but if possible 50% आप रिफंड कर दीजिए peasants को. But the landlords
दे अगेन एजिटेटेड और कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिफंड 50% एज। तो कितना? लैंडलॉर्ड ने गांधी जी ने पूछा कि कितना आप रिफंड कर सकते हो? तब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने कहा वी कैन रिफंड ओनली 25% ऑफ द मनी दैट वी हैव एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। 25% को ही हम लोग रिफंड करेंगे। एंड यहां पे आप देखने को मिलेंगे एक ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी थे जो उस चंपारण एपिसोड को बहुत ही क्लोज कंटेक्ट से उसने देखा। वो कहता है, उसका नाम J.G. हॉज करके दिया है, इफ यू गो थ्रू द बुक्स यू विल गेट हिम। तो वो कहता है कि महात्मा गांधी जो कि इतना मतलब डिटरमाइन है और जिस पीजेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए, तो डेफिनेटली वो 25% को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एडामेंट रहेंगे। बट लेट मी टेल यू, महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। यस 25% है तो उसको भी दे दीजिए, आई एम विलिंग और आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। सो हियर महात्मा गांधी क्लियरिफाइज दैट whatever money they refunded is not important, वो important नहीं है। important ये है कि उन्होंने अपना जो ग्रेनरी था, अपना जो ट्रेजर था, वहां से थोड़ा कुछ निकाल के दिया, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट उनका प्रेस्टीज, उनका जो इज्जत था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये महात्मा गांधी का क्लेरिफिकेशन है। उसने वो कहता है कि पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना हिम्मत किया पीजेंट्स ने कि पीजेंट्स के लिए उन्होंने अपना ग्रेनरी से थोड़ा सा कुछ 25% दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट उनका प्रेस्टीज के ऊपर आज सवाल खड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वे 25% रिफंड ऑफ दिस पीजेंट्स मनी वॉज एक्सेप्टेड बाय महात्मा गांधी। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे करते गया और पीजेंट्स को रियलाइज हो गया दैट दे हैव देयर ओन राइट्स एंड दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स, दे हैव दैट करेज नाउ। उनके पास इतना हिम्मत आ चुका था इस एपिसोड के बाद में। उसके बाद कुछ साल के बाद में क्या हो गया, जो लार्ज स्टेट्स ब्रिटिश लैंड लोग ओन करते थे उसको रिवर्टेड किया गया पीजेंट्स को वापस दिया गया। नाउ द पीजेंट्स आर द लॉ ऑफ द लैंड, वो अपना अपना लैंड का वो लोग मालिक बन गए और इस तरह से चंपारण में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम डिसअपियर हो गए कंप्लीटली। यू कैन से इराडिकेट किया गया दिस शेयर क्रॉपिंग को चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से। सो इन दिस वे महात्मा गांधी helped the peasants of Bihar to eradicate the sharecropping from their district. So the indigo sharecropping system was completely eradicated from the Champaran district of Bihar. The peasants are the owner of the land now. No land loss system existed after that movement. So if you have read history carefully, तो आपको मालूम होगा कि गांधीयन वर्किंग मेथड कैसे थे। महात्मा गांधी सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे डील नहीं करते थे, वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे भी डील करते थे। लाइक इन चंपारण, उन्होंने देखा कि चंपारण बहुत बैकवर्ड है, बहुत पोर है, वहां एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्कूल एस्टैब्लिश किया और उस पे कुछ वॉलंटियर टीचर्स को हायर करके पढ़ाने के लिए एज अ टीचर वहां इंगेज कर दिया। उसके बाद मेडिकल में देखा, हॉस्पिटल्स में कोई मेडिसिन्स नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हायर किया और कुछ मेडिसिन्स वहां प्रोवाइड किया, अवेल किया, ताकि चंपारण का जितना भी पीजेंट्स है एटलीस्ट वो फैसिलिटीज अवेल कर सके। उसके बाद उसने क्या किया, द कंडीशन ऑफ दिस चंपारण वुमेन, चंपारण पीजेंट्स का वुमेन का जो कंडीशन वर्स्ट था, एकदम खराब था। उनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा होते थे और वो भी एकदम फिल्थ, गंदा। सो महात्मा गांधी वाइफ वो उनको मदद किया, उनको कैसे साफ रखना है, कैसे क्लीननेस को मेंटेन करना है, कैसे घर को सराउंडिंग को साफ रखना है, इन सब चीजें के ऊपर एजुकेशन दिया उनकी वाइफ ने भी। और उनका बेटा भी लास्ट बेटा भी आया और उनका मदद किया। सो इन दिस वे महात्मा गांधी acted not upon this political or economic condition but on the social and cultural aspect as well. So it is often said that Champaran Satyagraha is a turning point in Gandhi's life. ये कहा जाता है। आपको मैंने बताया कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे, ये उसका पहला मूवमेंट था।
उसको मालूम नहीं that what is the condition of Indian under British rule। लेकिन चंपारण सत्याग्रह का थ्रू से उसको पता चल गया कि ब्रिटिश लोग सप्रेस करके रखा हुआ है, जो इंडियन है, जो ओनर है असली लैंड का, भारत का जो रियल ओनर है, उनको सप्रेस करके वो लोग उनके ऊपर रूल कर रहा है, ये गांधी जी को पता चला। और जो चंपारण मूवमेंट था, इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ डिफेंस, डायरेक्टली काउंटर पार्ट करने वाला नहीं था। इट वॉज यू कैन से एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट था जो पीजेंट्स का जो प्रॉब्लम था उसको रिड्यूस करने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया था, और कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट जो है एक बहुत बड़ा सक्सेस के रूप में आया। इसीलिए ये चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसका थ्रू से उसको पता चला कि इंडिया में एग्जैक्टली इंडियन का सिचुएशन कैसा है, स्पेशली पोर का सिचुएशन कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल ग्राउंड में कैसा है इंडियंस, उनको पता चला। और इनके थ्रू से उसको ये पता चला कि अगर हम सब कोऑपरेट करके एकजुट होके हम ब्रिटिश से लड़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट इंडिपेंडेंस। ये 2 पॉइंट महात्मा गांधी को थ्रू दिस चंपारण सत्याग्रह उन्हें ये आइडिया मिला। तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह इज कॉल्ड ए टर्निंग पॉइंट इन महात्मा गांधी लाइफ। सो लेट मी टेल यू, महात्मा गांधी अपार्ट फ्रॉम दिस सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इश्यूज था, जो एस्पेक्ट था, उसके अलावा महात्मा गांधी ने इंडिगो चैप्टर का थ्रू, चंपारण सत्याग्रह का थ्रू उसने ये भी जाहिर किया दैट सेल्फ रिलायंट इज इम्पोर्टेंट। खुद पे खुद हमें डिपेंड होना है, दूसरों पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए तो डेफिनेटली वो दूसरा जो है हमें डोमिनेट करेंगे। उसके बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, हमें खुद को खुद से पहले आजाद करना है, उसके बाद ही हम देश के लिए आजादी के लिए लड़ सकते हैं। अगर हम खुद को डर से आजाद नहीं कर पाएंगे तो हम ब्रिटिश के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने थ्रू दिस मूवमेंट ही अरोज द अवेयरनेस दैट सेल्फ इंडिपेंडेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू अटेन इंडिपेंडेंट ऑफ ए कंट्री। उसके बाद महात्मा गांधी कहता है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना है। इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने दिया है, आप अगर किताब पे पढ़ोगे तो लास्ट पैराग्राफ जो है वहां एक मेंशन किया गया है। महात्मा गांधी का एक फ्रेंड था, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स फेयर एंड्रयूज बोल के थे। तो उन्होंने क्या किया, जब चंपारण मूवमेंट शुरू हो रहा था उस समय को वो जा रहे थे और वो चाहते थे कि वो महात्मा गांधी का टीम का सपोर्ट दे, सिंस ही वॉज ए इंग्लिशमैन, ही वॉज ए ब्रिटिशर, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि महात्मा गांधी का वो हाथ बताए, उनका सपोर्ट करे, उनका साथ में खड़ा रहे। और जो महात्मा गांधी के जो एसोसिएट्स था, जो उनका लॉयर्स था, जो उनका फ्रेंड्स था, वो लोग चाह रहे थे कि ये इंग्लिशमैन अगर हमारे साथ रहेगा तो इंग्लिशमैन क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट है वो वीक हो जाएगा और हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने वेहेमेंटली उसको क्या कर दिया, अपोज किया, डिक्लाइन किया। यू आर थिंकिंग रॉन्ग, ऐसा गलत मत सोचो, ये हमारी लड़ाई है और हमें इसको खुद लड़ना है। किसी के ऊपर बंदूक रखकर हमें बंदूक नहीं चलानी है, हमें अपना बंदूक खुद उठाना है और खुद ही हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा होकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। सो ये एक सेल्फ रिलायंट का एक एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने यहाँ प्रेजेंट किया है। सो इन दिस वे this indigo chapter ends here. I hope you understood the story well. If there is any confusion in any this explanation or in any part, please drop in the comment section. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।